So if you are saying your emotions in front of them and if they are acting cold, then it is not their fault. Addiction को जो आपने बोला, it is also very well known as chronic relapsing condition. कि अगर मोस्टली आपने जो रिहैब बोला, मैं उससे बोलना चाहती हूँ, बहुत ऐसे केसेस आपने देखा होगा जिसमें 2-3 महीने रिहैब में रहने के आने के बाद भी देयर फैमिली कंप्लेन्स कि अगेन वो उस एडिक्शन में फिर से जा रहे हैं. सब लोग आके पूछेंगे, अरे उसके साथ कैसे चल रहा है, लाइक हाउ इज इट गुड, तेरा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है. तो बड़ा पिक्चर्स देता था, अब तो पिक्चर्स नहीं देता. तो आप यू डिडंट गेट दैट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम जब आप बच्चे थे. एंड वो टाइम पे जैसे कि हमने बात किया था दैट आवर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज नॉट दैट डेवलप्ड. It's your Tanvi. Hello ma'am, welcome to Talk with Tanvi. How's you? I am fine and first of all thank you for having me here. Of course अभी तक तो it's been a great time with all, like with No, you all with you guys it's and amazing. बहुत चीज़ें हमको सीखने को मिला. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं भी पता है, जो शायद उड़ीसा में नहीं होता है या फिर इंडिया में वो नहीं होता है, जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं. सो हमें ये पता चला कि आप साइकोलॉजिस्ट के साथ हिप्नोथेरेपिस्ट भी किए हैं, मतलब स्टडीज़ एंड ऑल. yes. सो जो कि उड़ीसा में तो आई गेस है ही नहीं, एंड इंडिया में बहुत रेयर है, एंड आउट ऑफ कंट्री ये बहुत ज़्यादा चलते हैं. सो उस टॉपिक में भी आएंगे, लेकिन आप हमें ये बताएं कि मुझे जो लोग टर्म यूज़ करते हैं ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ, सो व्हाट इज़ एक्चुअली मेंटल हेल्थ इज़? Okay. First of all, trauma will come to it later. But जो mental health है, it's actually like जैसे है physical health we can define. Yeah. In the same way we can define mental health, but we feel as if कि ये एक like superficial topic है and we don't talk about it. It's simply a sector where your cognitive, your emotional and behavior fields combines or coordinates, like how you think, feel and act. That is what mental health is. And this is how we define in our field. But of course there are lots of other definitions out there, but simply how you think, then you feel and act. It's simple as that. And if you want to know about trauma, we can discuss it later, but it's a long topic, so yeah, we can come We to it. actually want to Yeah. discuss about that because Okay. आज के time में, to be very honest, being a very young artist in this industry, so इस फील्ड में आने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया. एंड उस बीच में जो ट्रॉमास मुझे हुए हैं, बहुत स्ट्रगल्स करने पड़े हैं. सो उस टाइम में आई फील लाइक आई एम नॉट दैट कनेक्टेड विद माई फैमिली, विद माई फ्रेंड्स, Okay. एंड और एक ये भी है जो वी कॉल एज लव लाइफ. बहुत ट्रॉमास उससे भी होते हैं. सो बेसिकली उसका क्योर क्या है एंड क्या करना चाहिए? Okay. सो वाई पीपल आर नॉट दैट कनेक्टेड विद, मतलब फैमिली के साथ इतना कनेक्टेड क्यों नहीं है? Okay. So let's first start by understanding what trauma is. या Because आज के social media age में trauma is a very misunderstood term. Because हम इसको या तो बहुत बड़ा समझ रहे हैं, या तो we are concising it to small things, small issues happening in everyday life. So before understanding what trauma is, I'll go by explaining what fear is. फियर, एग्जैक्टली. So fear is an emotion. Okay. तो fear एक ऐसा emotion है that always has a long tail. That means first we understand what fear feels like to our body and to our mind. So fear is composed of two things. One is your physiological responses, okay, that you feel in your body, and another is your cognitive part, that the thoughts, that racing thoughts you feel. It is fear. But fear has that capability जो आपके genetic expression को change कर सकता है. लाइक Yes, I'll come to it. So it is fear,
एंड जैसे कि आपने बोला हाउ इट इज डूइंग दैट, Yeah. कि फ्रॉम फियर लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट स्ट्रेस एंड एंजाइटी इज, बिकॉज स्ट्रेस को हम फियर के साथ कंबाइन करके सोचते हैं, बट ऑल दिस लाइक फियर comes with some stress, but all stresses are not fear. We need to understand this. Yeah, right. Stress is only the physiological responses that we feel. हम बॉडी में जो फील करते हैं, सडन हार्ट बीट फास्ट हो जाना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना, रेस्पिरेशन Sweat बढ़ होना. जाना, स्वेटिंग होना कम्स लेटर, ऑल द इंटरनल थिंग्स. Okay. ओके, दैट इज स्ट्रेस. बट जैसे कि हम जिम कर रहे हैं, वी आर लिफ्टिंग हैवी वेट्स, Yeah. उस टाइम में आपके जो बॉडी में चल रहा है दैट इज स्ट्रेस, बट आपके माइंड में तो उस टाइम कोई फियर नहीं है ना, बट स्टिल आपका बॉडी वही तरीके का हार्मोन रिलीज कर रहा होगा जो कि एक बंदा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, अदर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में फील करता है. Right. ओके, तो दिस इज स्ट्रेस. स्ट्रेस इज लाइक कि वी हैव लॉट्स ऑफ वर्क, वी हैव लॉट्स ऑफ डिमांड्स, बट वी डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज. Right. ठीक है, दैट इज स्ट्रेस. एंजाइटी इज वरिंग अबाउट फ्यूचर इवेंट. It is a kind of worry that includes some kind of stress, that includes fear maybe, and maybe it will show up as stress and fear shows up in your body, but it is the worry about future event. Okay? Okay. So how trauma forms? You आपको कोई एक इंसिडेंट हुआ which you are not able to process. It is a kind of very bad incident, जो कि हम good incident नहीं बोलेंगे, a bad incident. Right. Where you are not able to think what you want to do, and that is a kind of threat or danger that your mind perceived at that point of time, and that is the fear. ठीक है, उसमें स्ट्रेस भी है, उसमें एंजाइटी भी है, क्योंकि उस टाइम आपको बोथ फील होगा. Both feel होगा. Okay, and that stress and anxiety mixed with combined to give you a fear response in your whole body, and then that fear, ये अगर आपने उस टाइम उस fear को प्रोसेस नहीं किया, if you haven't processed it or if you just let it be in your body without processing that emotion at that point of time, then it will get embedded in your nervous system. Okay, and end up giving you a trauma. That Okay. is known as trauma, and it comes out when your nervous system is maladaptive. Okay. ठीक है, एंड यही ट्रॉमा अगर आपने सही मोमेंट में आइडेंटिफाई नहीं किया, देन इट एंड अप गिविंग यू पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. ओके, Like what? दैट इज जैसे अ कार जस्ट पास्ड बाय यू नियर डेथ सिचुएशन, आप थे, इंसिडेंट 5 सेकेंड का था, बट आपके बॉडी में वो सेंसेशंस, दैट फियर रिस्पॉन्स विल स्टे टिल यू रिच अ प्लेस जहाँ पर आप जाना चाहते थे. तब तक आपके बॉडी में मे बी आपको शिवरिंग होगा, मे बी आप ब्लैंक हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए, मे बी आपको वो दिन भर आप एब्सेंट माइंडेड रहेंगे, बिकॉज वो फियर रिस्पॉन्स का ना टेल बहुत लॉन्ग होता है. जो हॉर्मोन्स वो आपके बॉडी में रिलीज करता है वो स्टे करते हैं वो फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Okay. एंड अगर चलो ये ट्रॉमा में अगर चेंज हो गया, क्योंकि आपने लाइक लॉजिकली इसके बारे में नहीं सोचा कि ओके इट्स फाइन, इट हैपेंस, इट्स लाइफ, देन ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा. जब भी आप घर से निकलोगे यू विल फील एंक्शियस, योर हैंड विल स्टार्ट स्वेटिंग, योर ब्लड प्रेशर विल गो अप, योर हार्ट बीट विल गेट फास्टर, यू विल फील द सेम फीलिंग जो कि आपने पास्ट कल फील किया था, वो नियर डेथ सिचुएशन जब एक्चुअल में हुआ था, बट अभी आपको फील हो रहा है विदाउट प्रेजेंस ऑफ दैट सिचुएशन. तो अभी उसे लाइक ओवरकम कैसे कर सकते हैं? Overcome is of course through therapy, because and here talk therapy, narrative therapy works great. Okay, because मुझे जितना पता है मोस्टली जो थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो भी मतलब इस जो इशू का रिजॉल्व करने के लिए जो भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर यूज़ करते हैं, दैट इज़ मोस्टली CBT दे डू. Okay, cognitive behavioral therapy. But if any therapist or psychologist is listening to this, then I would suggest either learn or get trained in a specific therapeutic technique that is known as CPT,
cognitive processing therapy. CBT comes under it, but CPT is itself a very broad stuff. Okay. तो अगर आप वो सीख जाओगे ना, दैट इज द बेस्ट टेक्निक टू डील PTSD. ठीक है. एंड मोस्टली इट्स लाइक कि आपके माइंड का वो नैरेटिव जो आपने सेट कर दिया है, जो आपने सेट ऑफ न्यूरल कनेक्शंस अपने ब्रेन में बना लिया है, यू जस्ट नीड टू रीवायर इट अगेन. सिंपल, नथिंग मोर दैन दैट. बट इट कैन बी वेरी डेंजरस अगर आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया. ठीक है. तो दैट इज द थिंग. जस्ट लाइक कि एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ. So, मुझे पानी से थोड़ा डर लगता है. मतलब मैं पानी में मतलब पूल वूल जाती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जैसे मस्ती मजाक में धक्का मार देते हैं, पानी में गिर जाते हैं. तो वो एक ट्रॉमा मेरा, मतलब आई डोंट नो इफ आई कॉल इट एज ट्रॉमा और नॉट, बट वो चीज़ मेरे दिमाग में एक रह गया है. तो मुझे कोई सडन पानी में ऐसे फेंक देता है, क्योंकि मुझे स्विमिंग आती नहीं है, मैं गिर गई पानी में. वो जो डूब के जो फिर मैं उठी कुछ सेकंड के लिए, मतलब मैं ऐसे बैठी, फिर सडनली मुझे एक बहुत अजीब लगा, मतलब सांस नहीं ले पा रही थी, बहुत घुटन हो रही थी, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स. मतलब सांस नहीं ले पा रही हूँ, ऐसे हो रही हूँ, एंड पूरा फ्रस्ट्रेशन में पूरा बहुत ज़्यादा निकाल रही हूँ, एंड जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि हाँ इट वॉज जस्ट फॉर फन, और पानी भी उतना डीप नहीं था. बट मैं उसको बोल रही हूँ कि दैट इज़ अ पैनिक अटैक. इज इट अ पैनिक अटैक, इज इट अ एंजाइटी अटैक और व्हाट? मतलब मैं अभी तक उस चीज़ में मैं खुद क्लियर नहीं हूँ. ओके. सो इफ़ यू आर सेइंग कि आपको पानी से डर लगता है बट नॉट ऑलवेज, यू एंजॉय बीइंग देयर, तो इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट फोबिया जो कि हम बोलते हैं. फोबिया इज अ काइंड ऑफ लाइक is a extreme fear of something specific. And when panic attack comes, it is also an extreme fear, but absence of a specific threat. मतलब कोई threat नहीं होगा, but you will feel as if feel the same fear response in your body as if something dangerous is there. Okay. ठीक है. तो we have to first analyze and know that has anything happened with you in your childhood regarding water. मे बी आप कभी कोई पूल में गए हो या फिर कोई तालाब में गए हो जहाँ आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो कि जिसका डर आपके मन में मे बी बैठ गया होगा. दैट कैन बी वन थिंग. सेकेंड, आपने शायद ऐसा कंटेंट कंज्यूम किया होगा. इट्स न्यू एज issue. Okay, right. It is not you will not find it any books. Okay, because इट इज़ अ न्यू एज इशू. इस पे आगे लिखा जाएगा. ठीक है. तो आप किसी काइंड ऑफ कंटेंट कंज्यूम आपने किया है जिसमें कोई बंदा पानी में गिर के उसका डेथ हो गया है. ओके. तो वो आपके दिमाग में ऐसा पैटर्न क्रिएट कर दिया है बिकॉज योर माइंड इज जस्ट कनेक्शंस. योर मेमोरीज आर कनेक्शंस. मेमोरीज आर गुड, मेमोरीज आर प्रोटेक्टिव. बट अगर आपके पास ऐसी मेमोरीज है जो कि आपको फियर रिस्पॉन्स, दैट इज द सोल पर्पस ऑफ दैट मेमोरी वाज प्रोटेक्टिंग यू, बट इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू इन द वे दैट इट शुड डू. ठीक है. तो आपको अगर वो चीज़ से डर लग रहा है, दैट मीन्स आपके माइंड में कुछ ना कुछ मेमोरी ऐसा है दैट इज जो कि अभी हम ट्रॉमा उसको कहते हैं. लेट सिंप्लीफाई इट बाय सेइंग मेमोरी. तो वो मेमोरी कुछ ऐसा है आपके दिमाग में जो वो फीलिंग ला रहा है. एंड इट कुड बी अ पैनिक अटैक, इट कुड बी एन एंजाइटी अटैक. ठीक है. पैनिक अटैक में एक्सट्रीम फियर होता है, बट एंजाइटी अटैक आई डोंट फील सो बिकॉज इट कैन बी क्योंकि मे बी आपको ये वरी हो सकता था शायद मेरा डेथ हो जाता, शायद मुझे कुछ हो जाता. वरिंग अबाउट अ फ्यूचर दैट हैजंट हैपेंड येट. And in the same way, it could be panic attack also. ठीक है. तो you have to analyze what has happened with you. Then only आपका पूरा history जानने के बाद then only you can solve it. Or at least you can find a better alternative. Okay? So it's like बचपन में ही मतलब summer classes में गए थे. सो उधर समर कैंप में स्विमिंग सिखाते हैं, सब सिखाते हैं. सो आई वॉज इन अ ट्यूब ओनली. ट्यूब भी पकड़ी थी मैं. एंड 6 फुट के पानी में सडन क्या हुआ, मैं ऐसे स्विमिंग करने का ट्राई कर रही हूँ एंड मैं डूब गई.
Oh. दैट हैपेंड. अगेन आई ट्राइड कि हाँ चलो होता है ऐसा इंसिडेंट. देन अगेन आई ट्राइड इन माई मतलब गांव के जो नदी में कोशिश कर रही थी, वहां भी डूब गई. थर्ड टाइम भी हुआ था, कहा ना समंदर में, वो दोस्तों के साथ खेल रही थी, वो पूरा कुछ ऐसा होता है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी वो अंदर खींचते हैं. हाँ, सो ऐसे ही मुझे फील हुआ. देन उसके बाद से जब भी मैं पानी में मतलब सडन मुझे कोई धक्का मार देता है या फिर सडन मैं गिर जाती हूँ, तो ऐसे ही होता है. सी, आप अभी अभी आपने जब उसको सोचा तो आपको पता चला कि रीजन मेरे चाइल्डहुड में ही है. हाँ. ठीक है. क्यों चाइल्डहुड का चीज़ इतने टाइम तक रह जाता है हमारे मन में? बिकॉज चाइल्डहुड में हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, इट वॉज नॉट वेल डेवलप्ड. ओके. एंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज द ओनली थिंग जो कि हमको एनिमल्स से सेपरेट करता है. दैट मीन्स एनिमल्स के पास भी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, बट इट हैज़ like we have it more developed. That's why we live in a society and we are social beings. ठीक है. तो ये जो चीज़ आपने बोला, इसी से हम रिलेशनशिप को भी कवर कर देंगे ताकि you will have a better understanding how it happens. Okay. तो चाइल्डहुड में आपके साथ कुछ हुआ. Okay. Like the example you have given. कि मुझे मैं पानी में 3 बार ट्राई की हूँ फ्रॉम चाइल्डहुड टू अप टू जो भी लाइक आपका फॉर्मेटिव ईयर्स हुआ. लाइक टिल 25 योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज स्टिल डेवलपिंग. ओके. तो आपको एक्सपीरियंसेस मिले कि तवे पे मुझे हाथ मैं अगर मारूंगी तो मेरा हाथ जल जाएगा. तब तवे में हाथ क्यों मारोगे नेक्स्ट टाइम? नहीं. योर माइंड विल टीच यू दैट कि एंड ये जो आपका रिपीटेटिव एक्सपीरियंस हुआ है सेम चीज़ के वजह से, देन आपके माइंड को ये लाइक योर माइंड हैज़ गॉट अ मैप, हैज़ गॉट अ पैटर्न कि लिसन, इफ़ यू डू दिस you will have this result, so better to cut it in between. Yeah. or if you are not able to cut it in between, जैसे कि आपको किसी ने पुश किया पानी में, so you have to either fight or flight. फाइट और फ्लाइट क्या होता है? या तो आप तैरने की कोशिश करोगे या उधर से निकलने की कोशिश करोगे. इधर यू विल फाइट फॉर योर सर्वाइवल और यू विल रन फॉर योर सर्वाइवल. थर्ड थिंग ऑल्सो हैपन्स, बट लेट्स कन्फाइन दिस टू इट कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आपके बॉडी में ऑन हो जाएगा. एंड इसीलिए आपको जो उस टाइम जो फील होता है आपके बॉडी में, दैट इज ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स. ओके. ठीक है. क्योंकि आपके बॉडी में देर इज अ सिस्टम दैट इज आवर नर्वस सिस्टम. लाइक वन इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. इट हैज़ 2 parts, sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system. Like there are many like things to it, but let's confine it so that layman भी समझ पाए. Okay, sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system. So if we come to sympathetic nervous system, it is the fight and flight mode. Okay, if it will get activated, your fight and flight response would get activated. Your parasympathetic nervous system is the rest and digest mode. Okay, so what happens here is that जब आपके माइंड को there is an HP axis also, I'll talk about it, but if we talk about fight and flight mode, if your brain will see a danger, it will either fight, it will give your body that much of energy either to fight or to run. For both you need energy. ठीक है. And parasympathetic is the mode where you rest and digest. That is, you are in a relaxed mode. ठीक है. जब आप fight and flight mode में होते हो, जो कि आज के डेट में सब रोज हर टाइम रह रहे हैं, which is not healthy at all, because ये दोनों का बैलेंस ही आपको आपके हेल्दी लाइफ के लिए रिक्वायर्ड था. ठीक है. Because if there is a danger, like there, let's say a tiger in front of you, if you have the power, fight, or you have to run, otherwise you will die. Simple. So for that matter, fight and flight mode was necessary. But अभी जैसे कि हम इंस्टा में रील स्क्रॉल कर रहे हैं, a reel came, a ghost reel, your mind get frightened without your knowing. Okay, your mind is getting triggered. Then another reel came in which
maybe there is some sad reel, there is some like different kinds of reel we are पूरा consuming. relatable लगता है. या एवरीडे बेसिस में हम ये सब देख रहे हैं, ठीक है. एंड आवर माइंड इज कॉन्स्टेंटली ऑन फाइट एंड फ्लाइट मोड. आपके बॉडी में वही हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जो आपको रिलैक्स करने नहीं देगा. इसीलिए आपने देखा होगा रात को लोगों को नींद नहीं हो रहा है आज. नहीं हो रहा exactly. अगर वो 12 बजे सोने जाते हैं तो उनको नींद में भी 3 बजे हो रहा है, 4 बजे हो रहा है, 5 बजे हो रहा है. वाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहने का मतलब है यू कांट स्लीप. इफ यू विल स्लीप यू विल डाई. योर बॉडी इज रनिंग ऑन दैट थिंग, ठीक है. तो जो पैरासिम्पैथेटिक मोड है उसमें आपको नींद आएगा because your body is in relaxed mode, it is in restoration mode, so you will get relaxed. Okay, and maybe आपका जो ये हो रहा है that is for this reason, because उस टाइम पे आपका fight and flight mode on हो जा रहा है and you are getting that response, and because of the unresolved childhood understanding that is in your prefrontal cortex, written as कि water is danger, if you will if somebody will throw you in water or if you will go into water then आप डूब जाओगे. So that is what happening with you. Same happens with relationships also. कि रिलेशनशिप में होता है चाइल्डहुड में जो भी आपको फीलिंग्स हुए हैं regarding the immediate relationships that you had at that moment, mother, father, or Brother. immediate, obviously your immediate family is the family that you have in your home. Then you went to school, you had friends. तो उस फेज में जो आपके साथ जिसने आपको जैसा फील कराया होगा, जैसे कि हमारा उतना माइंड डेवलप नहीं होता है, तो उस टाइम पे हम जैसे उस चीज़ को सोचे हैं that will stay with you for the entire life. Okay. If both of your parents were working at that point of time, you didn't get their love, तो आपको क्या होगा, आप उस टाइम प्रोसेस नहीं हुआ, हमको लगा we are not worthy to get love. So these kind of individuals, these kind of childs would grow up as an adult जो कि अपने relationship में either they will become too clingy so that मेरे पास वो रहे, मेरे को अपना वर्थ शो करना है, मेरे को अपना वर्थ दिखाना है दुनिया को, एंड आई शुड गिव मोर टू गेट मोर, और एटलीस्ट टू गेट अ लिटिल, ठीक है. नहीं तो दे विल बिकम टू डिटैच्ड. नो मैटर हाउ मच लव आई गिव, nobody will stay with me, so I would not give anybody any love at all. एंड दैट्स वाई ब्रेकअप इश्यूज़ हो रहे हैं. दैट ब्रेकअप इश्यूज़ मतलब ब्रेकअप के बाद जो हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ द इशू फॉर दिस रीज़न ओनली, बिकॉज वी आर फीलिंग वी आर अनवर्दी. वी नीड दैट पर्सन टू स्टे विथ अस टू वैलिडेट आवर एंटायर फीलिंग्स और आवर एंटायर वर्थ. ओके, सो मैम जैसे कि हम ब्रेकअप के बारे में बात किए, एंड द फीलिंग ऑफ वॉर्दीनेस, वो हम ढूंढ रहे हैं लोगों में या फिर हम जताने की कोशिश कर रहे हैं, वो है क्या चीज़ एक्चुअली? ये जो वर्दीनेस का फीलिंग है, इट इज़ नॉट अ थिंग कि आप लाइक यू स्लेप्ट लाइक यस्टरडे नाइट एंड आज सुबह उठे और आपको वो फीलिंग आ रहा है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. ये तब से शुरू हुआ है जब से योर माइंड वॉज नॉट मैच्योर्ड, एज वी हैव टॉक्ड अर्लियर. तो लाइक यू आर अ चाइल्ड, तो आप जब पैदा होते हो, योर इमीडिएट फैमिली इज़ द वर्ल्ड जिनसे आप रिलेशनशिप के बारे में सीखते हो. द गिव एंड टेक दैट हैपन्स इन अ रिलेशनशिप, यू लर्न फ्रॉम देयर. आप जब लाइक मे बी यू हैव क्राइड फॉर फूड बट योर मॉम केम लेट, और मे बी आपके फादर से जो वो प्यार चाहिए था, दैट प्रोटेक्टिव थिंग, you didn't get that at that moment of time जब आप बच्चे थे. एंड वो टाइम पे जैसे कि हमने बात किया था दैट आवर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज नॉट दैट डेवलप्ड, एंड दैट्स द रीज़न कि हमने वो इमोशंस को कभी प्रोसेस ही नहीं किया. वी फेल्ट कि ओके दिस इज़ द रिलेशनशिप क्राइटेरिया एंड दिस इज़ आई एम एंड दिस इज़ व्हाट आई नीड टू डू टू स्टे इन अ रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप
gives this, then I have to give that to get this. Okay, Okay. it sounds complicated, but ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको आपके पेरेंट्स से अटैचमेंट इश्यूज रहा लाइफ में, मतलब चाइल्डहुड में. Like I would discuss a case study. He was a like 21-year-old and he's doing medical. Okay, he's studying medical and he's a 21-year-old. So when he came to me, he was like कि for breakup issues he came, not for breakup issues actually, for relationship issues. कि पहले उसका जब when he was in his teen years, तो he had a relationship for 4 years, then breakup हुआ उसका, एंड उसके बाद 1 year तक वो उससे निकल ही नहीं पाया. देन स्लोली एंड स्टेडीली ही स्टार्टेड टॉकिंग विद अ गर्ल एंड नाउ ही वांट्स हर टू बी अवेलेबल ऑल द टाइम, लाइक दैट मदरली लव. ही वांट्स दैट कि वो मुझे पूछे हर टाइम, मुझे दिन भर रिप्लाई करती रहे मैसेजेस का, एंड ही वांट्स दैट. ओके, तो व्हेन ही केम टू मी ही वाज लाइक कि मैम मेरे दिमाग में ये है, मुझे ये रिजॉल्व करना है बिकॉज मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे पढ़ना है. ठीक है. देन आई आस्क्ड हिम कि बिकॉज इट इज़ वेरी विजिबल कि पहला रिलेशनशिप में ही हैड गिवन ऑल हिज एफर्ट्स, और जब उसको वो लाइक रीपे नहीं हुआ, सो मे बी ही हैज़ बिकेम लाइक दिस. बट आई आस्क्ड हिम चाइल्डहुड में कुछ हुआ था, पेरेंट्स क्या like what is the relationship, what was the relationship of a parents with yourself, tell me about that. He was like, no, my relationship with my parents was very good, they were very supportive, they were very they have supported me in all the things. ठीक है, एंड अभी तक मेरे पेरेंट्स से मेरा रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है. तो आई डिडंट आस्क हिम एनी मोर क्वेश्चन इन द फर्स्ट सेशन में, और कुछ मैंने पूछा नहीं, बिकॉज ही वॉज नॉट एट दैट जोन जहाँ पर मैं उन्हें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकूँ रिगार्डिंग द रिलेशनशिप, बिकॉज ही फील्स कि सब ठीक है. ठीक है, तो मैंने बोला ओके इट्स फाइन, दीज आर सम ट्रिक्स और दीज आर सम टेक्निक्स, यू कैन यूज़ दिस, लेट्स सी क्या होता है. देन इन द नेक्स्ट सेशन व्हेन ही केम, आई स्टार्टेड विद द थिंग कि मुझे अपना पूरा लाइक व्हेन यू स्टार्टेड बीइंग लाइक व्हेन यू आर बॉर्न, तब से लेकर जब तक तुम्हारा मेमोरी स्टार्ट होता है तब से लेकर अभी तक मुझे डिटेल में बताओ. व्हेन ही टोल्ड मी, देन आई गॉट टू नो कि ही वाज द फर्स्ट सन, ओके, फर्स्ट चाइल्ड. तो उस टाइम पे उसके पेरेंट्स वर्किंग थे एंड उनके जो पापा थे उनका गवर्नमेंट सर्विस था, तो फॉर दैट रीज़न ही वाज लाइक उनको शिफ्ट करना पड़ा. ठीक है, बट जैसे कि ये बच्चे का स्कूल वहाँ था एंड ही वाज लाइक 5 year old और 6 year old, तो उसको अपने नाना नानी के पास रहना पड़ा. ओके, एंड उसी फेज में जब अपने नाना नानी के पास था टिल द एज ऑफ 15 और समथिंग, ही वाज विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, एंड उसी बीच उसका एक छोटा भाई भी हुआ एंड वो छोटा भाई उनके पेरेंट्स के साथ ही रहा, एंड दैट फीलिंग हैज स्टक विथ हिम टिल नाउ. कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपने पास नहीं रखा पर मेरे छोटे भाई को रखा. तो दैट फीलिंग ऑफ, एंड जब वो आते थे ना उसके पेरेंट्स, एंड उसके पेरेंट्स तभी आते थे जब इसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होता था. पर कोई भी डॉक्टर के पास वो गया था, किसी के पास क्यों खराब हुआ तबीयत उसका रीज़न नहीं था. डू यू नो व्हाई ही वाज गेटिंग इल? बिकॉज उसका बॉडी इमोशंस, लाइक his emotions, he was not able to process those things and he was missing his parents so much कि एक बार जब उसका तबीयत खराब हुआ, उसके पेरेंट्स आए, उसकी बॉडी को एक कोपिंग मैकेनिज्म और एक ट्रिक मिल गया खेलने को कि ओके मैं जब मेरा तबीयत खराब होता है तब मेरे मम्मी पापा आते हैं, तो लेट्स गेट इट. एंड ये वो जानबूझ के नहीं करता था, इट वाज internally happening. एंड वो जब तबीयत खराब होता था वो तब आता था, एंड he used to get lots of love from his parents. तो अभी adult life में relationships में यही show हो रहा है that he wants all the attention and it is not bad, it is not his fault. He just need a person जो उसको बताएगा कि ये issue हुआ था, but still तुम्हारा जो self concept है उसको हम change कर सकते हैं, तुम्हारे self worth को हम बढ़ा सकते हैं, जिससे कि अभी के रिलेशनशिप में वो इम्पैक्ट ना आए.
Right. That is the way we do things. Okay, and yes. And also the emotionally unavailable thing happening in Yeah, relationship. exactly. So for that I have seen many people, girls are saying that ki, no, my boyfriend is very emotionally unavailable, so I'm searching for another guy, and I need at least a back support or something, or a option like that. So why this emotionally unavailable thing is happening? Because ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में लड़कियों का ये कहना है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स का, कि लड़के बहुत ज़्यादा इमोशनली अनअवेलेबल है. वो सोचते हैं कि हम कोई चीज़ लॉजिकली नहीं सोचते हैं, जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तब वो होते नहीं हैं. उसी टाइम कोई दूसरा बंदा आएगा एंड वो फुल ऑन इमोशनली सपोर्ट करेगा उसको, एंड द सेम थिंग रिपीट होगा, वो भी इमोशनली अनअवेलेबल रहेगा. व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग? ओके, तो अगर हम लाइक आपके क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करें तो एज पर यू कि men are mostly emotionally unavailable in a relationships which the girls like find out in the journey of their relationship, and then उनको जैसे कि वो चीज़ चाहिए then they switch. This is the Right. question you have asked. Okay, अगर हम men के emotionally unavailable होने के reason को आए, just tell me what we teach our 5-year-old boy. What we teach? अगर वो गिर गया, वो रोया, रोना नहीं, लड़का है, ये हर जगह बोला जाता है. यू आर अ बॉय, यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू डोंट नीड टू क्राई, यू शुडंट क्राई. तो ये बोलने के पीछे क्या कारण होता है? लाइक व्हाट इज द नैरेटिव वी आर प्रोवाइडिंग टू आवर चाइल्ड कि यू आर अ बॉय, यू शुडंट शो योर इमोशंस. Yeah. Isn't it? And अगर कोई बच्चा इमोशन शो करना उसे पता नहीं है, तो वो सामने वाला जब शो कर रहा है वो उसे समझेगा कैसे? क्योंकि सामने वाले के इमोशंस को समझने के लिए यू हैव टू गेट इमोशनली इन्वॉल्व्ड विद दैट पर्सन. And we haven't taught our kids that. We haven't taught our boy child that. But at the same time, girls go emotional, like girls have better emotional intelligence because like they know how to feel emotions. Yeah. तो of course वो इमोशंस को दिखाना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि उनकी इमोशंस को कोई सुने. ठीक है. एंड इट हैपन्स मोर विद दोज गर्ल्स जिनकी इमोशंस में भी चाइल्डहुड में किसी ने सुना ही नहीं, किसी ने समझा ही नहीं. मोस्टली द मेल पार्ट ऑफ देयर लाइफ, दैट इज देयर फादर. Yeah. Maybe father was not emotionally available, and now she needs a male figure who should understand her emotions and who should stand with her. Right. Which is not bad from both the sides. It is not anyone's fault, I would say. बात ये है, हमको बस सीखना है. We should teach our kids from childhood for being emotionally intelligent. Okay. Yeah. There is a institute in Yale. Okay, it is in US, I feel. There they have schools जहाँ पर वो kindergarten के बच्चों को सिखाते हैं emotional regulation. They have 3 to 4 times in a day they have emotional check-ins. Oh. What kind of emotions you are having right now? Label it correctly, क्योंकि हर चीज़ गुस्सा नहीं होता. There is jealousy, there is disappointment, and we have different kind of definitions for different feelings. So label it correctly, tell us how you are feeling it in your body, and find out what you can do to change it. Because emotions are like weather. It will pass, but it shouldn't be a season. अगर वो season में convert हो गया, then that means you haven't processed it, or at least you haven't acknowledged it at the first place. ठीक है. कोई जो trauma होता है when somebody of our closed person passed away, ठीक है, उस टाइम पे अगर हमने वो चीज़ को प्रोसेस नहीं किया होगा तो that will stay with you forever. So you have to process it. जैसे हम 100 साल अगर इस दुनिया में जीते हैं तो हम 100 साल का खाना एक दिन में नहीं खा देते. Every day you have to eat, you have to excrete, you have to metabolize. Yeah. है कि नहीं?
तो वैसे ही इमोशंस भी आपके पूरे दिन में 100 तरह के इमोशंस आते हैं. In the morning you are feeling maybe grumpy, in the afternoon maybe you are feeling happy, in the like towards the evening maybe you are feeling satisfied or something like that, and you have to acknowledge them, accept them as your own emotions, then only you would be able to sail through it. And for that there is a very great technique everybody should learn, that is a ruler technique. Ruler means R stands for recognize your emotions. U stand for understand the emotion. कहाँ से आ रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा feeling. Then L stands for labeling your emotion. You have to label. Is it a anger, that is perceived injustice, or it is a disappointment, that means somebody hadn't met any of your expectations, or is it jealousy, that the other person is not having having something that I don't have. तो ये सब चीज़ में आपको गुस्से जैसा फीलिंग आएगा, बट सारा चीज़ गुस्सा नहीं है. एंड जब आप उसका रूट कॉज जान लोगे कि अच्छा इसलिए हो रहा है, ओके मे बी आई एम एंग्री, दैट मीन्स आई एम फीलिंग परसिव्ड इनजस्टिस, तो मैं कन्फ्रंट करूँगा. एंड डिसअपॉइंटमेंट, माई नीड्स आर नॉट मेट, तो मैं वो जाके उस सामने वाले बंदे को समझाऊंगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप. देन द जेलसी, अगर उसके पास कुछ ऐसा चीज़ है जिससे मैं जेलस हो रहा हूँ, मेरे पास नहीं है बोल के, देन आई कैन ईदर वर्क टू हैव इट, अर्न इट विथ एथिकल वेज, और इफ आई डोंट नीड इट इन माई रियल लाइफ, ठीक है, क्योंकि सब इंसान को सब चीज़ चाहिए नहीं होता, वी जस्ट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, ठीक है. तो अगर मैं वो अवेयरनेस खुद में ले आऊँगी तो मे बी मेरे को गुस्सा भी नहीं लगेगा, ठीक है ना, बट यू हैव टू प्रोसेस इट, ठीक है. एंड दिस इज labeling your emotions, and then understanding after that like ruler. Okay, E is expressing your emotions. You should know ki how you should express your emotions, what like at what place you should express your emotions, कहाँ आपको express करना है, and वो who are the right people जिनके पास वो emotions आप express करो. True. Not every person is worthy of listening to your emotions. Okay, because because if we'll see ki it's not their fault that they don't understand your emotions, because they don't know you, they don't know how you function. So if you are saying your emotions in front of them, and if they are acting cold, then it is not their fault, है ना. And second thing, you should find the trusty people, जहाँ जिनके पास ट्रस्टवर्दी पीपल, जिनके पास आप ये सब बता सकते हो, ठीक है. देन कम्स रेगुलेटिंग योर इमोशंस. इफ यू डू ऑल दी स्टेप्स इन अ वेल मैनर्ड वे, वेल स्ट्रक्चर्ड वे, तो ऑब्वियसली आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाओगे. इट कैन साउंड अ बिट मेसी, इट कैन साउंड अ बिट लाइक ऐसे लगेगा कि इतना कौन करेगा, किसके पास इतना टाइम है, बट विथ प्रैक्टिस यू कैन डू इट. बिकॉज जैसे जिम करने के लिए आपको 1 घंटा टाइम देना ही पड़ेगा, of course, ठीक है, आपके फिजिकल बॉडी के लिए, तो 15 मिनट तो आप कर ही सकते हो, definitely, ठीक है. इन बिटवीन वर्क सेशंस यू कैन डू, यू कैन हाउ एम आई फीलिंग, ठीक है. या फिर जब आपको रश होता है वो इमोशंस का जो आप हैंडल नहीं कर सकते, उस टाइम कर सकते हो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स. And ma'am, after the breakup, mostly people chose to be lonely, or can switch the partner, or blackmail sometime to stay with the same person. So is it for the worthiness, or yeah, because it is a coping mechanism. Okay, अगर आपका रिलेशन किसी बंदे से हुआ है, यू आर इन रिलेशनशिप विद समबडी, ठीक है, अगर आपने पब्लिकली वो चीज़ अनाउंस किया है, देयर इज़ अ हाई चांस सब लोग आके पूछेंगे, अरे उसके साथ कैसा चल रहा है तेरा, लाइक हाउ इज़ इट गोइंग, तेरा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, तो बड़ा पिक्चर्स देता था, अब तो पिक्चर्स नहीं देता. तो आप प्रोटेक्टिव फॉर्म में आ जाते हो. लाइक आई शुड डू समथिंग टू प्रोटेक्ट माई वर्दीनेस, I should write a narrative for myself. तो इधर आप उस बंदे को पकड़ के रखोगे, ठीक है,
ताकि आपके वो बैकग्राउंड में जो नॉइस चल रहा है कि यू आर अनवर्दी, नॉट एवरीबडी इज सेइंग दैट बट यू आर फीलिंग ओके you are unworthy because you lost that person, so you should keep that person with you. कैसे करोगे? या तो आप उसके पैर पड़ोगे, या आप उसके पीछे रोज जाओगे, या तो आप उसको अगेन एंड अगेन रिमाइंड कराओगे कि हमारा रिलेशनशिप कैसा था वगैरह वगैरह, या फिर आप उसे ब्लैकमेल करोगे. ओके और एल्स अगर आप उसको रखना नहीं चाहते अपने पास, you want to take revenge. Why? Because she has or he has deceived you in the way your parents had deceived you. Your whole life you had been unrebel. ठीक है, आप पूरे लाइफ रिबेल मोड पे रहे हो, आपके पेरेंट्स ने आपको वो सपोर्ट नहीं दिया. अभी आप देख रहे हो कोई एक बंदा था या फिर बंदी थी जिस पे आपने इतना एफर्ट डाला, he or she switched, so you should take revenge. Your mind would say like that. And you take revenge, or you come to a short-term relationships that is known as situationships, nanoships, etc., etc. Okay, so you would come to that just to prove that I am worthy. I have people around me. I have that charm. I can bind people to me. So that kind of stuff happens. तो मैडम जैसे आज के जनरेशन में बहुत लोग करियर टेंशन में हैं, करियर पे फोकस्ड है बट हो नहीं रहा है, वो स्ट्रेस अलग, लोनलीनेस, पेरेंट्स के साथ ज़्यादा कनेक्शन नहीं है और इतने काम के लिए ऑक्यूपाइड रह जाते हैं कि मतलब वो भूल ही जाते हैं कि बाकी कोई है दुनिया में उनका. और आई गेस वो ज़्यादा उनको इफ़ेक्ट करता है, ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, इसलिए वो सुसाइड में भी कन्वर्ट हो जाता है कभी कभी. तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं. बिकॉज आई कैन सी कि बहुत ज़्यादा करियर टेंशन भी रहता है. करियर टेंशन के साथ एक साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो हैंडल नहीं कर पाते हैं. आज के टाइम के जो 20 ईयर ओल्ड है एंड इफ़ वी टॉक अबाउट 20 ईयर्स बिफोर जो 20 ईयर ओल्ड्स थे, देयर लाइफ इश्यूज़ आर टोटली डिफरेंट. बिकॉज पहले तो हमारे पास 20 से 30 के लिए एक ग्राफ था जो सोसाइटी ने फिक्स किया था कि एट दिस एज यू शुड ग्रेजुएट, एट दिस एज यू शुड लाइक गेट अ जॉब, एट दिस एज यू शुड मैरी, एट दिस एज यू शुड हैव अ होम और अ कार, एंड एट दिस एज यू शुड प्रॉपर मैप, लाइक या यू हैड अ मैप. एंड जब वो मैप अप टू 30 के एज तक वो कंप्लीट नहीं होता था, देन पीपल यूज टू फील दैट प्रेशर एंड तब उनको इश्यूज आते थे. पर अभी जो पहले के टाइम में जो 30 ईयर ओल्ड फील करते थे, अभी वो सेम चीज़ 20 ईयर ओल्ड फील कर रहे हैं. दे आर फीलिंग दैट दे आर टू ओल्ड फॉर दिस सोसाइटी. क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ हमारा घर का पड़ोसी नहीं है जिससे हम खुद को कंपेयर कर रहे हैं या फिर हमारे पेरेंट्स को हमको कंपेयर कर रहे हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, लैक्स एंड करोड्स ऑफ पीपल जिनके साथ हम खुद को कंपेयर कर रहे हैं. कोई 12 साल का लड़का कार ले रहा है, हाँ. कोई 20 साल का लड़का अपना घर बना रहा है 2 करोड़ का, एंड वी आर कंपेयरिंग. इवन इफ चलो मेरा इंटरेस्ट चलो मेडिकल लाइन में है, तो मैं उससे कंपेयर करूँगी जो कि एक्टिंग लाइन को उसने चूज़ किया एंड ही एंड अप बाइंग अ कार एट द एज ऑफ 18. बट आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग एट द एज ऑफ 23 और 25 और 27 और 30. ओके, एंड दैट प्रेशर इज़ रियल. ठीक है, एंड उसके लिए मैं अपने आप को इतना इधर ऑब्वियसली योर माइंड विल डेफिनेटली फाइंड सम काइंड ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म टू कीप यू एट ईज. तो इधर आप सबसे डिवॉइड हो जाओगे, जैसे कि सोशली खुद को आइसोलेट कर दोगे, या फिर यू विल एंड अप बीइंग अन लाइक एक्सट्रोवर्ट, लाइक हाई एक्सट्रोवर्ट. ठीक है, तो इन दोनों केसेस में क्या इशू होता है, इधर वे यू विल बिकम टू वर्कaholic and you will end up feeling that loneliness that is not having people around you at later phases of your life. एंड ऑल्सो आपको बर्नआउट भी बहुत फास्टर वे में होगा. इन द सेम मैनर जो ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड हो जाएंगे, दे विल एंड अप सैक्रिफाइसिंग देयर करियर ओवर
देयर रिलेशनशिप्स। relationship। एंड जब हम कोई भी बैलेंस है, अगर कोई ज़्यादा होगा दूसरे को आपको भरने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। एंड जब ये सब बैलेंस नहीं आप कर पाओगे देन यू विल एंड अप टेकिंग एक्सट्रीम डिसीजंस, जैसे कि आपने बोला सुसाइड। ओके, एंड इसका एक्चुअल जो हम बोलेंगे, वी विल नॉट से देयर इज़ अ क्विक फिक्स फॉर एनीथिंग एट ऑल। आपको खुद के एवरी इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी इज़ लाइक अ फिंगरप्रिंट। आपका और मेरा पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट होगा। इवन इफ अगर हम ट्विंस होते तो भी आपका पर्सनैलिटी और मेरे पर्सनैलिटी में बहुत डिफरेंट होता। मे बी हम ट्विंस होने के बाद, लेट फॉर से हम ट्विंस थे, बायोलॉजिकली वी आर सिमिलर, बट वी एंड अप ग्रोइंग इन डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट फैमिलीज। देन हमारा जो एक्सपीरियंसेस था that made different neural connections of emotions in our brain, and that's why we take situations and we perceive situation through different lenses. इसीलिए शायद मैं किसी चीज़ को अगर डर जाऊंगी या फिर मैं किसी चीज़ को किस पर्सपेक्टिव से देखूंगी वो शायद आपको हजम ना हो, आपको लगे कि व्हाट लाइक ऐसा कैसे हो सकता है, लाइक हाउ शी इज़ थिंकिंग इन दिस वे, इट शुडंट बी दैट वे। राइट। ठीक है, इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि इतनी छोटी छोटी बातों में तो क्यों डर जाता है। हाँ। है ना, तो बिकॉज उसका कनेक्शंस ब्रेन में वैसे ही बना है। अगर हम लेमैन टर्म्स में बोलें, अगर आपके पेरेंट्स को लाइक एनी ऑफ योर पेरेंट, योर फादर और मदर, मोस्टली फादर, अगर उनका कोई ट्रॉमा केस है, लाइक ट्रॉमा केस इन द सेंस अगर उनको किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए उनके मन में डर है or something like that, and he has suffered it throughout his life, maybe with saying or without saying, is it maybe it would have been visible or not, but अगर रहा है तो वही जो थ्रेशोल्ड है वही उनके ऑफस्प्रिंग में पास होता है। दैट इज द फियर changes the gene expression in the father and move to the child or offspring through the sperm, and then वो उनके नर्वस सिस्टम को ऐसे थ्रेशोल्ड पे सेट करता है दैट इट सेंसिटाइजेस और इट सेट्स द नर्वस सिस्टम एट अ वेरी लोएस्ट थ्रेशोल्ड ऑफ लाइक उनका कैपेबिलिटी, उनका कैपेसिटी ऑफ टेकिंग प्रेशर, टेकिंग स्ट्रेस बहुत ही कम होता है और टेकिंग फियर बहुत ही कम होता है। इसलिए आपने देखा होगा कोई कोई एक जन होंगे जिनको हम अगर ऐसे पीछे से बुला देंगे तो दे विल बी लाइक ऐसे घूमेंगे, लाइक बहुत ही डर के, दे विल बी लाइक वेरी जंपी। ओके, व्हेन इट्स कम टू कि कोई ऐसे पीछे से बुला देगा। और कोई कोई जन होंगे जिनको आप बुलाओगे, एक बार बुलाओगे, दो बार बुलाओगे, भले ही उनको सुनाई दे रहा है वो बहुत ही आराम से घूमेंगे। व्हाई इट इज लाइक दिस? बिकॉज उनके लाइक नर्वस सिस्टम में ही ऐसे काइंड ऑफ लाइक वो थ्रेशोल्ड ही ऐसे सेट हुआ है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे आर वेरी जंपी। ओके, एंड इसीलिए कोई एक जन लाइक आपके लिए मे बी एक सिचुएशन बहुत ही छोटा होगा, आप बहुत इजीली पास कर जाओगे, मेरे लिए मे बी बहुत बड़ा हो सकता है, एंड मे बी आप मेरी बात समझ ही नहीं पाओगे कभी, एंड दैट्स वेयर कॉन्फ्लिक्ट हैपेंस अमंग इंडिविजुअल्स। एंड ऑल्सो मैं भी ऐसे सोच सकती हूँ कि शी इज़ डूइंग इट वेरी इजीली, वाई एम आई नॉट? तो आई विल स्टार्ट कंपेयरिंग माई सेल्फ, एंड वहीं पे हमारा स्ट्रेस बहुत इंक्रीज होता है। ओके, वहीं पे हमारा जो करियर का कंपैरिजन हो गया या फिर कुछ भी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर ओनली। ठीक है, एंड कमिंग टू द स्ट्रेस स्टफ कि द पीपल, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि जैसे कि हम आइसोलेट कर देते हैं खुद को बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और फंक्शन विद पीपल, तो सो वी आइसोलेट आवर सेल्फ एंड वी रन द मैराथन, दैट इज़ योर वर्क लाइफ। देन एक पॉइंट आता है जब लोगों को बर्नआउट होता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज आपकी बॉडी में, हमारे बॉडी में एक HPA एक्सेस है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड एड्रेनालिन एक्सेस। आपका जो हाइपोथैलेमस है इट इज़ लाइक इट कैरीज द प्रिमिटिव ड्राइव। ठीक है, ईटिंग, सेक्स एंड योर स्लीप, ऑल दीज थिंग्स। ओके, एंड ये आपके बाकी हार्मोन के रिलीज को भी कंट्रोल करता है बहुत हद तक। जब कोई भी डेंजर हो, ठीक है, वो एक्चुअल डेंजर हो या फिर परसीव्ड डेंजर हो,
तो हाइपोथैलेमस उसको डिटेक्ट करके आपके पिट्यूटरी को बोलेगा दैट इज हियर the master gland which controls the release of all the hormones of other glands, उसको बोलेगा कि pituitary we need energy, we have to because there is a danger, so हमको fight करना है, flight करना है, ठीक है, तो हमको hormones चाहिए, we need that energy, so pituitary would detect the adrenal कि release energy giving hormones, that is your cortisol and your adrenaline hormones, so that is epinephrine and all. Okay, and this is very important when it comes to waking up in the morning. आप सुबह उठते हो इसी एक्सेस के वजह से. These hormones are very useful. वो आपको डेंजर से बचाता है. क्यों? क्योंकि ये जब रिलीज होता है ना, आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो आपके मसल में ब्लड फ्लो चाहिए, तो आपका हार्ट बहुत जो ज़ोरों से बीट करना स्टार्ट करता है. एट द सेम टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन हो के क्रैम्प्स ना फॉर्म हो, इसीलिए आपके लंग्स में रेस्पिरेशन भी इंक्रीज हो जाता है. दैट इज ऑल द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो कि हम स्ट्रेस और एंजाइटी पैनिक अटैक में फील करते हैं. ठीक है, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ प्रोटेक्टिव, इट इज़ रिक्वायर्ड, जैसे वेकिंग अप इन द मॉर्निंग हुआ या फिर डेंजर से प्रोटेक्ट करना हुआ, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म. तो आप अभी रोज़ जो काम में जाते हो, इफ़ यू डू नॉट लव दैट वर्क और देयर इज सो मच ऑफ प्रेशर ऑफ डेडलाइंस, मीटिंग द डेडलाइंस, एंड यू आर नॉट इन टू दैट वर्क टू मच, यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल, और यू आर नॉट पेड इनफ like according to the work you are putting, देन क्या होगा, आपका अननेसेसरी स्ट्रेस बिल्डअप होगा. ठीक है, और इसी एक्सेस में आप रहोगे. सेम हैपेंस विथ द स्क्रॉलिंग ऑफ फोन. ठीक है, मतलब आप जो फोन स्क्रॉल करते हो, दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ स्ट्रेस. यू आर नॉट स्लाउचिंग एंड वॉचिंग रील्स, इट इज़ नॉट रेस्ट, योर माइंड इज स्टिल थिंकिंग इट एज डेंजर. एंड सेम हैपेंस विथ इफ यू आर इन अ ट्रैफिक, आप गाड़ी चला रहे हो, इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड टू स्टे अलर्ट. एंड ये एक्सेस जब काम करता है, इट वुड नॉट लेट यू स्लीप, राइट, सोने नहीं देगा आपको. ठीक है, एंड ये स्टेज में जब आप यू आर रनिंग ऑन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसी फेज में आप जब सोने जाते हो तो आपको नींद नहीं होता. इसलिए अ प्रॉपर स्लीप हाइजीन इज़ वेरी रिक्वायर्ड व्हेन इट इज़ कमिंग टू अ बैलेंस्ड लाइफ. क्योंकि अगर आप वो 8 घंटे की नींद नहीं लोगे, दैट इज़ प्रॉपर रेस्ट, तो आपका बॉडी रिजुविनेट नहीं होगा. बिकॉज आप लेट से सो रहे हो, फिर से सुबह उठ के फिर से वही चीज़ में लग रहे हो, एंड योर लाइफ विल गो लाइक दैट. एंड ये कॉर्टिजोल अगेन एंड अगेन रिलीज होने के साथ साथ होता रहेगा, एंड अ टाइम वुड कम जहाँ पे your body will drain, like those hormones will drain all the energy from your body, and that is the time when people feel burnout, that is extreme fatigue, extreme lack of motivation. ठीक है, so that is what happens in our body, but we don't understand and we think कि हम और पहले जैसा काम नहीं कर पाते because we are not good enough. No, your body has given up on you. Simple. ओके. So this is the thing, and यही हो रहा है आज के like career stress and all में, the same thing is happening. सो मैडम, स्ट्रेस के बारे में हम जैसे बात किए, सो मेल एंड फीमेल दोनों का वर्क लाइफ भी अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है, उनका बॉडी भी डिफरेंट वे में वर्क करता है. सो व्हाट अबाउट दैट व्हेन फीमेल इज़ हैविंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड वर्क प्रेशर भी रहता है, तो वो चीज़ तो मेल डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना, बिकॉज दे डोंट हैव पीरियड्स एंड ऑल जो फीमेल्स का होता है. सो दैट स्ट्रेस इज़ डिफरेंट, बिकॉज हम ये भी नहीं बोल सकते कि उनका स्ट्रेस भी कम है. तो फीमेल्स का कैसा रहता है एंड मेल का कैसा रहता है वर्क लाइफ विद दिस स्ट्रेस एंड दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल्स का होता है? ओके, लाइक आपने जो अभी जो टॉपिक पे लाइक टच किया है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे फीमेल्स अपने ही बॉडी को नहीं पहचानते. वी जस्ट थिंक दैट दोज 7 days or 5 days are the only time of concern, that is when we are menstruating or we are having our periods, Because they are dealing with the mood swings. Yeah,
we just think that it is the concerned period. If we take proper care of ourselves, then हम इसको अच्छे से deal कर सकते हैं. But no, we need to understand that we women doesn't function like male, that is a 24-hour circle. Okay. In males, the testosterone peaks in the morning hours, and it's slowly and steadily it reduces during the late hours, that is just after they wake up. Okay, if somebody wakes up late, then उनका testosterone level वैसे ही set होता है. It Okay. peaks and then it reduces, then after rest it again peaks. ठीक है, तो वो 24 आवर के शेड्यूल में काम कर सकते हैं. We as women, our hormones change throughout the month. Okay, जो हमारा menstrual phase होता है, let's first say it is the first phase. Okay, our month is divided into 4 phases. Our monthly cycle is divided into 4 phases. First phase is the menstrual phase, that is 1 to 5. Okay, and that is the phase when your your mood is it is bound to be low, because it is a kind of winter season. Okay. Where you should feel cozy, you should relax, you should self introspect, because your body and mind work on that way. Okay, and the hormones are different. Then comes, after 5th day, then comes the follicular phase. At this phase, it is about till day 14. After your period, if your period, starting of the period is day 1, then day 14th till day 14th, that is follicular phase. If you are a woman who had a great आपका 28 days का cycle होता है, तो it is kind of that. Follicular phase में it is the best phase, because your progesterone is rising. It is a queen hormone. Okay, you will be like, कोई भी issue आ जाए, आपको ऐसा feel होगा, I can get through this. Okay, उस टाइम पे आप socially ज़्यादा active feel करोगे. Your skin will look better. You will feel better. Yeah. Because that is the time जहाँ आपका follicle create हो रहा है. So that in the later phase, that is around 3 to 4 days after your follicular phase, वो उसमें आपका ovulation होता है. That is the ovulation phase. And those 3 to 4 days are the best days of your throughout the cycle, because you had ovulated. So now you should be physically active, you should be healthy, and you should be you have all the energy to meet with people, to date, to talk. Your communication skills will get better. You will feel you can lift heavier at that point of time. Okay, because why biologically it is required? Because you need a male so that your egg can fertilize. If we Okay. see biologically, so we can take benefit of this phase to do our outdoor activities. Like if you are a public speaker, like you host shows and all, and if you are hosting on those days, then your power of communicating would be very different from that Tanvi who is working on her periods. Yeah. Okay, maybe you will feel a bit of low energy. Maybe you will feel like कि मुझे नहीं करना, like that kind of feeling. Like you will go on stage, you will speak, then you will come back, I'm tired. But some days you are full of energy. Why? Because your body is wanting people to acknowledge you, to see you. Okay, and in this follicular and ovulation phase, you can do heavy lifting, you can do power lifting and all those cardios, and because these exercises gives you stress. Right. Okay, your body I'm not talking about male, I'm talking about female. ठीक, okay, तो उस phase में आप heavy वगैरह lift कर सकते हो. Then when your luteal phase starts, just after the ovulation, that is आपको biologically आपका body को क्या पता चला? Either your egg get fertilized, or your egg is not fertilized but it is in your system. So in your luteal phase, your progesterone slowly start declining. That is, it will stay in the system, but your another hormone, that is progesterone, that will start increasing. Okay. Progesterone is kind of progestational hormone. If you conceive, then it will create it will become the lifeline of your baby, kind of that.
okay, but progesterone also helps in cortisol creation, okay. So अगर उस फेज में आप हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, स्पेशली जस्ट 7 days बिफोर योर साइकिल्स, देन आपको आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन विल गो टू क्रिएट कॉर्टिसोल, एंड आपका जो लाइक मेन एक्टिविटी था टू स्टॉप और टू डीएक्टिवेट और स्टॉप द वर्क ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है, वो और नहीं कर पाएगा. योर uterus where your baby will get implanted, estrogen is making it is creating a surface, तो वो ओवरली क्रिएट कर देगा. ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का काम है उसको कुशनी बनाना, ताकि बेबी अगर एग प्लांट हो तो वो कुशनी रहे. तो प्रोजेस्टेरॉन ने ये नहीं किया, तो इजेस्ट्रॉन विल स्टार्ट एक्टिवेटिंग मोर. Okay. Because progesterone has gone to make cortisol because of the extreme stress you are giving to your body through outdoor activities or through external pressure. Yeah. ठीक है, तो उस फेज में आपके बॉडी में PCOD is a problem that happens because of these reasons. Endometriosis happens and all of the other stuffs, and the onset of your cycle. तो उस टाइम पे your progesterone should act to control the work of egesterone. दैट इज़ योर लाइक वो जो कि कुशन बना रहा है, जो कि आपका एक प्लांट होगा जिसमें इट शुड मेक इट कुशनी, एंड उसको हम दूसरे काम में लगा रहे हैं. सो हु वुड स्टॉप द वर्क ऑफ द इजेस्ट्रॉन, एंड दैट्स वाई गर्ल्स और फीमेल्स एंड अप गेटिंग PCOD. These days PCOD is much more than we are facing like previously, right? In previous generations, okay. Yeah. Because we have work stress, we are comparing with lots of people on internet, and we have like हमने हमारे सिस्टम को पूरी तरीके से स्ट्रेस में ही रखा हुआ है. That's why our hormones are not understanding what to do when. ठीक है, तो it is actually a very long topic. So I would suggest everyone that they should do research, and it is not like कि अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो तो आप अपने लूटियल और पीरियड फेज में, मेंस्ट्रुअल फेज में पूरा ऑफ ही ले लो. No, it is not possible. You still need to work. So at that point what you should do, पूरे मंथ को you should do cycle syncing. That is syncing your workout, diet and your work life with your menstrual phases throughout the month, not only during a periods. इससे आपका हेल्थ भी बेटर होगा, आपका रिलेशनशिप with your partner would improve, because women have complaints कि mostly male have complaints कि she feels the sex drive at some point of time. कभी कभी वो हाँ बोल देती है and she is very much into sex, but when I approach sometimes she denies, because during your month, depending on the hormones, you will have fluctuations in having those physical relationships, because sometimes you just want to stay like this, okay. That is, you need that comfort, that rejuvenation period, that period to recover. Then again when egesterone rise and ovulation phase comes, again your sex drive goes up. So every woman should know that. Yeah, right. So yeah. So apart from this, also I have observed something, just like कि आज के youth is doing drugs. Okay. Yeah. And वो बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है. आई थिंक आप रिहाब में भी जाके सेशंस किए होंगे. सो वहाँ का माहौल कैसा रहता है, एंड वहाँ पे लोगों का मेंटल स्टेट कैसा रहता है? लाइक वो छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते, ज़बरदस्ती भेजा जाता है. व्हाट्स दैट? सी एडिक्शन को जो आपने बोला, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेल नोन एज क्रोनिक रिलैप्सिंग कंडीशन. कि अगर मोस्टली आपने जो रिहैब बोला, मैं उससे बोलना चाहती हूँ, बहुत ऐसे केसेस आपने देखा होगा जिसमें 2-3 महीने रिहैब में रहने के आने के बाद भी देयर फैमिली कंप्लेन्स कि अगेन वो उस एडिक्शन में फिर से जा रहे हैं. व्हाई इट इज़ हैपनिंग, एंड व्हाई इन सम केसेस रिहैब जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, दे गेट आउट ऑफ दैट. कैसे? बिकॉज हम सिर्फ वो एडिक्शन को देख रहे हैं, हम वो सिर्फ सब्सटेंस को देख रहे हैं जिसको हम यूज़ कर रहे हैं टू सप्रेस समथिंग इनसाइड अस. दैट इज़ द इमोशन.
what emotion is eating you up so badly that you are outsourcing your motivation from something outside of you. That is the addiction. That is like, this is the same theory with all your substance abuse and your social media addiction or porn addiction or sex addiction. This is the same case. How? अगर आपने कभी peer pressure में आके या फिर किसी भी वे से you tried that substance, if we confine our talk to substance abuse, then वो substance को आपने try किया, you are suddenly transported to some other world. क्योंकि उसने उस टाइम के लिए आपके लिम्बिक सिस्टम को नम कर दिया. यू आर नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ बैड इमोशन, यू आर फीलिंग अ ग्रेट स्पाइक ऑफ डोपामिन हिट. ओके, एंड दैट इज द टाइम जो कि अभी आपको, आप जैसे कि कोई एक बैड इमोशन के फेज में हो एंड लाइक अ सिचुएशन दैट यू आर नॉट एबल टू हैंडल, तो यू हैव अ पिल दैट यू कैन एक्सेस to just numb the current pain. That is the like overwhelming situation you are in. Career stress, financial crisis, relationship issues, anything. ठीक है, तो ये काम कैसे करता है? तो अगर जो रिहैब से आने के बाद अगेन द रिलैप्स, वाई? बिकॉज अगर किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस है बट रिहैब में उसको 2-3 महीने छोड़ दिया ताकि उसको वो एडिक्शन से दूर रखा जाए. रिहैब में मोस्टली, आई नॉट टॉक अबाउट ऑल द रिहैब्स बिकॉज देयर आर वेरी गुड रिहैब्स आउट देयर, बट कुछ रिहैब्स में देयर इज नो ट्रेंड काउंसलर्स, ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट और ट्रेंड थेरेपिस्ट. आई हैव एक्सपीरियंस दैट बिकॉज आई यूज टू डू इंटर्नशिप्स इन डिफरेंट रिहैब्स. और मैं जब कॉल करती थी कि इज देयर एनी अवेलेबिलिटी ऑफ इंटर्नशिप और रिक्वायरमेंट ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट एट योर रिहैब, तो वहाँ से आंसर आता था कि हम सब कर लेते हैं, हमको किसी की ज़रूरत नहीं. देन आई एम अ वेरी क्यूरियस किड एट दैट टाइम. सो आई यूज टू बी लाइक, ओके आप ट्रेंड काउंसलर हो तो आप मुझे सिखाओगे, आई नीड ट्रेनिंग. सो दे एंड अप सेइंग ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, बात करके तो समझाना है सबको. एंड अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है, मैं आपको बात करके समझा दूंगी कि देख तेरा बेटा है, तेरा फैमिली है, तू एडिक्शन में रहेगा, वो लाइफ बर्बाद हो जाएगी. अगर आप वो रियलाइजेशन को लेकर अपने जो करंट फाइनेंशियल क्राइसिस है उसके लिए आपको एनलाइटमेंट मिलेगा, ओके आई शुड गेट ओवर इट, एंड आप रिहैब से निकल कर उस पर काम करोगे, देन मे बी एडिक्शन आपका छूट जाए. बिकॉज आपका वो जो इमोशन, वो जो ओवरवेलमिंग सिचुएशन है उससे आप बाहर निकल गए. बट अगर आपने सिर्फ यही सोचकर और यही बात सुनकर फिर से अगेन यू केम इनटू द रियल वर्ल्ड विदाउट रिजॉल्विंग योर फाइनेंशियल क्राइसिस, तो फिर से आपको तो प्रेशर होगा ही. Right. फिर से यू विल एंड अप गोइंग टू दैट एडिक्शन जो कि एक एस्केप है, जो कि एक एनेस्थीसिया है टू नम योर करंट पेन. और एट द एंड ऑफ द डे यू will do suicide. Okay, same happens with the social media addiction because you are yeah, I have heard that some influencer suicide just because her Instagram followers decreased. Yeah, because you are ruining your pain and pleasure balance. Like there is a system in our body, a pain and pleasure balance. Okay, dopamine is not a happiness hormone. It is a motivation hormone. If you are seeing a social media reel, so you got a high spike of dopamine, that is pleasure. Okay, then अगर उसी वक्त आपने वो रील रख दिया and you like go to do some other work, तो उस टाइम आप वो फेज से निकल जाओगे. बिकॉज डोपामिन जैसे हिट होता है अगेन एट द सेम पॉइंट वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, एंड दैट इज द पेन पीरियड. वो पेन से अगर आप निकल जाओगे देन मे बी आपका जो एडिक्शन है दैट यू आर स्क्रॉलिंग रील्स आफ्टर रील्स वो बंद हो जाएगा. बट हम क्या करते हैं, रील देखा, खुशी लगा, ओ माई गॉड आई नीड वो वन मोर, और एक देखा अगेन वो स्पाइक हुआ, और एक देखा अगेन वो स्पाइक हुआ. बट स्लोली आपको और रील देखने में खुशी नहीं होगा. यू आर नॉट वॉचिंग द रील टू गेट दैट डोपामिन हिट, दैट इज द प्लेजर. नो, you are avoiding the pain that comes after your dopamine is dipping. Like when your dopamine dips, your pain becomes higher and higher and higher with each dopamine hit. And आप ऐसे करते करते जब रोज़ आप खुद को इसी चीज़ में ट्रेन कर दोगे ना, आपका डोपामिन का थ्रेशोल्ड इतना हाई सेट होगा
कि जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन की चीज़ है, दैट इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट और स्टडिंग और समथिंग लाइक दैट, जैसे कि आजकल का इश्यूज हो गया है, बच्चे 1 घंटा भी बैठ के पढ़ नहीं पाते, लेकिन 2 घंटा फोन यूज कर yeah, because they are getting the dopamine spike after every 20 to 30 second. ओके ठीक है, तो आपको वो समझना होगा दैट आप और वो रील को, यू आर नॉट वॉचिंग दोज रील्स फॉर प्लेजर, नाउ यू आर वॉचिंग दोज रील्स टू अवॉइड दैट पेन. एंड ऑल्सो ये अगर आपके लाइफ में कोई भी ऐसा इश्यू हो, जैसे आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आपके ऊपर कोई प्रेशर हो, या फिर आपका कोई ब्रेकअप हो गया हो, दैट इज एनेस्थीसिया ना. यू विल एंड अप नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स व्हाइल यू आर वॉचिंग रील्स. राइट. सो यू शुड अंडरस्टैंड क्या वो इमोशन है जिसके लिए आप रीच आउट कर रहे हो वो एडिक्शन के लिए, और एल्स अगर आप ये बायोलॉजी समझ जाओगे, दैट पेन एंड प्लेजर बैलेंस, देन आपको टेक्निक्स पता चल जाएगी कि कैसे मुझे वो पेन को रिड्यूस करना है और अवॉइड करना है, राइट. बाय नॉट गेटिंग और नॉट सीकिंग फॉर मोर एंड मोर प्लेजर. देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स. एंड ऑल्सो आई हैव वन क्वेश्चन कि हम तो बहुत सारे टॉपिक में बात कर लिए, बट और एक चीज़ मेरे मन में ये भी डाउट था कि मेल फीमेल के बाद भी और कुछ आता है. दैट इज़ जब लोग अंदर से सोचते हैं कि नहीं, आई एम नॉट एट ऑल स्ट्रेट, I am feeling something different, I am attracted to girls or boys attracted to boys. तो उनका mental health तब कैसा रहता है? बिकॉज वो सारी चीज़ें बहुत लोग बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते. बहुत लोग बोल सकते हैं फ्रीली, जो नहीं कर पाते. ऐसे कुछ केसेस आए हैं आपके पास? श्योर, ऐसे बहुत केसेस आए हैं, बट जस्ट आई टॉक अबाउट द इशू फर्स्ट कि सी इट इज़ कम्प्लीटली बायोलॉजिकल. Yeah. You are biologically a male or a female or a gay or a lesbian or a transgender or anything else. But do you know that nowadays a very a kind of trend is going on जहाँ पर लोग explore कर रहे हैं. Sorry to interrupt. Yeah, sorry. Not only Yeah, it's gay, lesbian, but also transgender, right? Yeah, exactly. I said na, a gay, lesbian or transgender, what is that? Whatever it is, ये तो हुआ purely biological. Yeah, that yeah. they are biologically made like this. But there are people like of younger generation, they are exploring stuffs because they are seeing on internet कि there is an option of lesbian, there is an option of being a gay, there is an option of being a transgender. So what am I? Okay, they are exploring their sexuality. Okay, Yeah. and it is not biological at all. No. ठीक है, तो ये तो हुआ एक चीज. बट जो एक्चुअल में बायोलॉजिकली ऐसे हैं तो ऑफ कोर्स उनका नीड्स भी वैसे होगा. They true. must be in a relationship which is very toxic because they are not seeking their love from that person because they want love from another gender. ठीक है, तो उनका जो मेंटल हेल्थ इशू होता है दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फील. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी इशू, क्योंकि बच्चा अगर obviously it starts from the childhood ना, they Yeah, start feeling that thing from the childhood. तो वो बच्चा समझ नहीं पाता मैं क्यों नॉर्मल नहीं हूँ दूसरे बच्चों की तरह, बिकॉज इट इज़ नॉट सोशली एक्सेप्टेबल. हम कहीं जाके नहीं देखते हमारा पड़ोसी गे है और हमारा पड़ोसी लेस्बियन है एंड दे आर हैप्पीली मैरिड एंड सोशली एक्सेप्टेबल. वी डोंट सी, वी जस्ट सी मैरिजेस वेयर अ मेल एंड फीमेल गेट मैरिड, सिंपल, फ्रॉम चाइल्डहुड. तो बच्ची को आइडेंटिटी इश्यूज होने लगता है. आई शेयर अ केस स्टडी. एक 19-year-old बॉय आया था मेरे पास लाइक 6 months बैक और 7 months बैक इन सेप्टेम्बर. ही वॉज लाइक कि एंड वो थेरेपी में नहीं रहा बिकॉज लाइक नॉट इन प्रॉपर थेरेपी, ही इज़ इन टॉक थेरेपी बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड. तो आई वॉज लाइक ओके, आई विल स्टे विथ यू, आई टॉक विथ यू ओवर कॉल टिल यू गेट आउट ऑफ दिस. तो उसने बोला मुझे लाइक I get goosebumps whenever I share this story with people कि मैम मुझे ना लड़कों से अट्रैक्शन होता है एंड मुझे लग रहा है कि शायद भगवान मुझसे गुस्सा है
और मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा एंड इसीलिए मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है. I'm लाइक also- मेरे कान उस टाइम सुन हो गए. ओके, लाइक माई ईयर्स गॉट लाइक कि हाउ इज इट पॉसिबल एंड व्हाट शुड आई डू टू सेव दैट चाइल्ड. बिकॉज अगर कुछ उसे हो गया देन आई वुड बी फीलिंग गिल्टी ऑल थ्रू आउट माई लाइफ, है ना. बिकॉज सी अ साइकोलॉजिस्ट जॉब और अ थेरेपिस्ट जॉब और काउंसलर जॉब, पीपल थिंक कि हाँ बात करने को तो पैसे लेते हैं, बट कम एंड लिव आवर लाइफ. Every day we listen to stories, we listen to people and they are suffering from lots of things जो कि हमारे लिए मे भी बहुत छोटे हो सकते हैं या फिर हमारे लिए unacceptable हो सकते हैं. And that kid was suffering from that. He was preparing for NEET and now I can happily say and proudly say that he messages every day to me, ma'am, this is the improvement I had. And ये first 2 months के अंदर he accepted his sexuality. That was my biggest achievement. कि he accepted, okay, I am feeling something for the same gender, but it's normal and society would accept it someday. That was my biggest win. After that उसका studies में भी improvement होना start हुआ and now he has become, उसका self worth बहुत बढ़ गया because he was in toxic relationships before. तो उसका self worth बहुत increase हो गया. He's now texting me every day saying मैम ये improvement हुआ, मैम वो improvement हुआ, and I feel so proud to see that child grow so much better. So it's just that first you need to accept yourself about what you are feeling. Then if you trust your loved ones, share with them but at the right time. At the right time, yeah. After understanding their mindset. Yeah. Ki would they accept you? Because it's better to stay with them at least till you get independent financially also and intellectually also. Then उसके बाद आपको जो decision लेना होगा that would be your good and well thought decision. Yeah. I would suggest that. Yeah. And also, I have heard something that you have studied about hypnotherapy. Yeah. जो कि हम पहले भी स्टार्टिंग में टॉपिक में बात कर रहे थे कि उड़ीसा में तो आई डोंट फील लाइक कि देयर इज एनी हिप्नोथेरेपी इज गोइंग ऑन. इंडिया में बहुत कम होंगे एंड बाहर ये बहुत ज़्यादा होता है. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. बट व्हाई इट इज़ एक्सपेंसिव? हिप्नोथेरेपी में होता ऐसा क्या है? Actually, I have done my advanced course and I am a clinical hypnotherapist. Okay. So, hypnotherapy जो है that is very much misunderstood term. जो टीवी में दिखाते हैं कि ऐसे चेन को हिलाते क्लॉक हैं. रहता है. Yeah. तो मैं हमेशा अपने जो वर्कशॉप्स होते हैं हिप्नोथेरेपी के ऊपर आई स्टार्ट बाय शोइंग देम अ इमेज जिसमें जो होता है ना ऐसे राउंड राउंड ब्लैक कलर का होता है दैट काइंड ऑफ जिसको देख के आप जब ऑब्जर्व करोगे यू विल फील स्लीपी. यू मस्ट हैव सीन इट इन मूवीज एंड ऑल. Yeah. ठीक है, तो वो आई स्टार्ट विद दैट. आई से कि आप 10 सेकेंड्स इसको ऑब्जर्व करो एंड सी आप हिप्नोटाइज हो जाओगे. ऑफकोर्स आफ्टर 10 सेकेंड्स वो नहीं होते. देन आई आस्क देम कि शायद मुझ में ही कुछ गलत है, मैंने आपको हिप्नोटाइज नहीं कर, लाइक आई वॉज नॉट एबल टू हिप्नोटाइज यू, दैट मीन्स देयर इज अ फॉल्ट इन मी. Then I give them the enlightenment that hypnotherapy is not at all like this. There is a difference between stage hypnosis जो कि बहुत ही like there should be people who are managing this and it is a kind of confusion that people create and they end up hypnotizing somebody, but not like that. It doesn't happen like magic. Hypnotherapy is simply आपको एक स्लीपी स्टेट को इंड्यूस करा जाएगा आपके माइंड में और आपके बॉडी में. एंड इन दैट स्लीपी स्टेट जो होता है ना, हम कभी बस में या फिर गाड़ी में जाते हैं तो अचानक हमको झपकी लग जाता है. दैट स्टेट just before you are moving towards deep sleep, that state is what we induce in hypnotherapy. वो ट्रांस होता है एंड उसके लिए 20 to 30 मिनट लगते हैं. Okay. You cannot hypnotize a person in just 2 minutes. Even I have tried stage hypnosis, okay, but it doesn't work like what we see, because when I was learning initially, I also thought कि हाँ ऐसे ही होता है, हम 1 सेकंड में कर सकते हैं, but it doesn't work like that. अगर ऐसा होता तो बहुत लोग बहुत कुछ कर चुके होते.
ठीक है, तो हिप्नोथेरेपी में आपको ट्रांस के स्टेट में ले जाकर आपके सबकॉन्शियस माइंड से past traumas or anything that you don't know consciously, we get it out from there, from your subconscious mind. And जो biggest myth है कि only weak minded people get hypnotized, no, it is hell difficult to hypnotize a weak minded people. Like that person will fear. He Okay. will fear a lot. आप उसको आंख बंद करने को बोलोगे, वो आंख खोल देगा. You can only hypnotize a strong minded person who has all its power over its brain and who will give you the consent to trap its subconscious mind. और आपको प्रॉपर बात करने के बाद कि देखो आपका ऐसा ऐसा इशू है, मैं ये करूँगी, ये क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, आर यू ओके विथ इट? अगर उसने हाँ बोला कॉन्शियसली, देन ओनली सबकॉन्शियसली यू कैन आस्क दोज क्वेश्चंस. नहीं तो उसको शॉक लगेगा इन दैट सबकॉन्शियस फेज एंड वो उठ जाएगा. आपका सारा मेहनत 1 घंटे का बर्बाद. दैट्स व्हाई यू शुड बी प्रॉपरली ट्रेन्ड एंड यू शुड बी लाइक यू शुड हैव अ हैंड ओवर दैट. अदरवाइज आपका करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. या that is the thing. Very amazing topic we had actually today and we are really grateful कि आप आज टाइम निकाल के हमें वो आपका जो कीमती टाइम हमको दिए, माइक्रोबोट को दिए, टॉक विद तन्वी को दिए. थैंक यू सो मच मैम. बहुत कुछ सीखने को मिला अबाउट कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ट्रॉमास, पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक, द रिलेशनशिप, ब्रेकअप्स, सब कुछ आप हमें एक शॉर्ट टाइम पीरियड में आप हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए. थैंक यू सो मच मैम. Thank you for asking these intellectual questions actually. Thank you. I also had a great time here. एक्चुअली वी हैड अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन. Yeah, of course. थैंक यू मैम. थैंक यू. तो मैम जैसे कि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में हमारा बात हुआ, इतना टाइम आपका लेने के बाद, सो वी हैव अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम माइक्रोबोट फ्रॉम ओजस विद. एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि इस पेपर बैग में क्यों है. सो द मोटो इज कि से नो टू प्लास्टिक एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से ही सब बने हैं. प्लीज़ आप निकाल के भी देख सकते हैं. Okay. सो वी हैव दिस नोटबुक. Okay. अगर इन केस आपका आप इधर बेच देते हैं या फिर फेंक देते हैं, ऐसा करते हैं, तो आप इसको ना भिगो के मिट्टी में डाल दोगे तो इसमें एक पेड़ उठेगा, उग जाएगा. It's great. Actually, आज के टाइम पे we are cutting trees to make papers. Yeah. And now we are doing the opposite also. Vice It's versa. a very great thing actually. Also we have more products. This is These quite are interesting. pen. Yeah, it has seeds also. Yeah, seeds inside. हाँ. कि पेन को भी ऐसे प्लास्टिक को भी ही बाहर ही फेंकता है. Yeah, right. So इसको भी आप अगर फेंक दोगे ना, इससे भी पेड़ उठेगा. Oh, great. And we have also one more. It's a bottle. ये भी organic product It से है. feels good also to hand. Yeah. Yeah, like हम जब hold करते हैं कोई चीज़ को, like if it is made of some other products, actually I'm not saying like that only. जब भी कोई स्टील या फिर कोई ग्लास का हम छूते हैं तो it feels different, but it feels so homely. जैसे कि हम मिट्टी को छूते हैं, we Yeah. spend time with nature. Right. It is kind of that feeling actually. So, yeah. So we have this beautiful gift from our eco-friendly product, Ojas Ved. Thank you so much for all these gifts. Thank You're you. welcome. It's your Tanvi. So we have on board Mr. Akash Raut और बड़ा बेटा, the brand ambassador of Studio 44. तो जैसे कि हमारा इस टॉपिक चल रहा था अबाउट मेंटल हेल्थ, आपका वैसे कोई क्वेश्चन है? मेरा तो मैं तो पागल हुई थी तो मतलब बोलना ठीक ही रहेगा. बट मैं ऐसा जनरल क्वेश्चन था, जब मेरा आगे चल कर कोई बच्चा पैदा होगा तो ऑब्वियसली हो सकता है मतलब गलतियां हर किसी से हो सकती हैं. Sure. बट जैसे मुझे मेरे बचपन आपके में- पापा ने ऐसा नहीं सोचा कि आप भी उनकी गलती हो? वो तो मैं हूँ, वो हर दिन बताते हैं मुझे. True. ही रिमाइंड्स मी एवरी अदर डे दैट तो इट्स And you वो also remind him.
या no और I ये- want to carry this tradition forward, लेगेसी Okay. लेगेसी फॉरवर्ड। जब मेरा बच्चा हो तो मैं भी उसको टपली मार के बोलूँ कि तू भी मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है, तो ऐसा चल के उसको आगे थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है क्या? श्योर, डेफिनेटली। हमारा कैसे चलेगा फिर काम? एग्जैक्टली। अगर आप अपना जनरेशन कैरी नहीं करोगे, आपका लेगेसी कैरी नहीं करोगे, इफ यू आर सॉल्विंग ऑल योर प्रॉब्लम्स हियर, तो हाउ वी आर गोइंग टू सर्वाइव फॉर 30-40 इयर्स मोर? तो मतलब माँ बाप को एक बच्चे को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? लाइक जान से। ऑब्वियसली वो नहीं, मतलब मन तो बहुत करता हूँ तो बट Yeah. कर नहीं सकते, बट ऐसे मतलब चलते फिरते लात मार दिया या सेकंड फ्लोर से फेंक दिए, मतलब ऐसे टाइप का। हाँ। If you are not seeing your future in the old age home, then यू कैन डू इट, या गो फॉर इट। या isn't it? बट पैसा भी तो उन्हीं के पास है ना, किनके पास? माँ बाप के पास। हाँ There are courts. There are legal papers. They are going to take your thumb impressions. If you are going to carry your hand throughout your life till your old age, then of course your thumb will be there, right? Just a pill, ताकि आप सो जाओ, then your thumb would be alive after death also. तो मतलब आप ऐसे बोल रहे हो कि मैं अपने मम्मी पापा के प्रॉपर्टीज ले आऊँ इस तरीके से, अगर हो पाए तो? अगर मैं अभी बोलूँ हाँ, तो if something happens like this, maybe I need to go to court. So I will not say anything. बट ऑफ कोर्स कोर्ट जाके भी आपको थेरेपी की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ, exactly जस्ट right. फाइनेंशियली Yeah, बाकी सब ठीक रहेगा। yeah, sure, of course. बट हाँ मतलब हाँ वही है, रिलेशनशिप का तो मैं आपको पूछूंगा नहीं, तो कुछ पॉइंट ही नहीं बनता, क्यों? कोई रहना ही नहीं चाहती। क्यों? पता नहीं उनका ट्रॉमा। मैं देखो, मैं आपके लिए ना पेशेंस बनवा रहा हूँ, Yeah, of course. समझ रहे हो? Yeah, yeah. ठीक है, मतलब all the girls who are happy and healthy minded and I just make them so traumatic that they come to you Okay. कि हाँ ये भड़वे से Should we कैसे- collaborate? Exactly. Should we collaborate? हाँ, I think डेफिनेटली। मैं कमीशन ले सकता हूँ। Yeah, 10-20% of course you can. Definitely. Okay, great. Good idea. जैसे Yeah. मैम का फीस है अभी 1 लाख Yeah. 2 लाख। 1-2 लाख लेते हो आप? नहीं, कौन देगा? वही मैं, इसीलिए तो आपसे बोले कि अगर आप इकट्ठा कर रहे हो तो we can collaborate. मैं वही बोल रहा हूँ, मैं आपको ग्रुप प्रोजेक्ट दूंगा, Yeah. ठीक है? आप ग्रुप मुझे में 3 लोगों को महीने पागल दो, बनाओगे। 3 महीने दो, मैं 6-7 गर्लफ्रेंड पटाऊँ, फिर मैं उनको ट्रॉमा भेजते। बिल्कुल। कोई बात नहीं, that's मैं ट्रॉमेटिक। Too much traumatic. So much traumatic. अच्छा, ये जो टॉक्सिक लड़कियां होती हैं सच्ची में होती हैं ऐसे, मतलब? नहीं होती है, क्योंकि आप जैसा उनको बहुत मिले होते हैं ना, हाँ, है ना? तब तो तो वो बनता है वो उनका। किसको पास करेंगे? Until and unless they are mothers हाँ, and they are passing it to their children, they will pass it to you, right? मैं वही सोच रहा हूँ। तो मतलब ये तो चलता रहेगा ऐसा प्रोसेस। Of course. टॉक्सिक लोगों से तो मिलते रहेगा। तन्वी, आपकी कोई है जो टॉक्सिक? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि टॉक्सिक लोग मेरी ज़िंदगी से निकल चुके हैं, लेकिन एक है यहाँ पे। नहीं, you should have a bit of poison every day. अगर आप अपने बॉडी को यूज टू कर दोगे इतने पॉइजन का, अ टाइम विल कम जब आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉइजन दिया जाएगा, बट स्टिल यू विल बी एबल टू सर्वाइव. सो इट्स गुड टू हैव टॉक्सिक Required. पीपल इन इन योर लाइफ। लाइफ. तो इतना मतलब क्या वो ओल्ड मॉन्क छोटा पैक पी लेंगे हम? सिरप देखा है आपने? काशी होता है तो कफ पीते हैं. सिरप कफ सिरप दैट. अच्छा, you can have it on a daily basis. मतलब we should be able to interact with toxic people in order to Yeah, in order to survive. toxicity. Yeah, Okay. because the world will not be able to devoid of toxic people, right? You should be dealing with them, so you should practice by being with toxic people, right? Either die a hero or live long enough to become Yeah, a yeah, villain. right. Yeah, Deal with toxic people or be yourself. yeah, exactly. That makes sense. Now अभी मैं लग रहा है थेरेपी हो रहा है, बट बहुत अच्छा लगा मुझे। फ्री की थेरेपी ना। Sure. आप ऐसे बातें करते रहिए मुझसे। जरूर. ये तो चाहते हैं, अभी पता चला कि साइकोलॉजिस्ट को ही पागल बना के छोड़ दिया, अब उनका ट्रीटमेंट फिर कौन करेगा? जब मैं इस फील्ड में आई, मेरे घर वालों ने मुझे यही बोला कि हमको पता था, क्योंकि
तू पागल है इसीलिए तू पागल की फील्ड में जा रही है. Oh wow. Okay, because though we think opposite attracts, but no, doesn't happen in real world. Like people attracts. Like you are toxic, I am toxic, then we'll attract. ओके Yeah, you are safe zones. No? That's why. अच्छा हाँ मतलब कलेश होना देना अच्छा मतलब Yeah. कलेश होना तो मैंडेटरी है. वो बर्तन थे कि तेल और पानी would not stay together, right? हाँ, exactly. But तेल and sorry, पानी and the other things mix well, right? Old है ना? ओके या Yeah, right. वेरी गुड ये मतलब Good example. बढ़िया आपने जो ऐसे दारू और पानी के बीच में बादाम वाली बातें की हैं बढ़िया लगा मुझे मिक्स किया है जो बातों को आपने अचार डाला है जो वेरी गुड मेरा कंटेंट लेकिन ये सब शेयर नहीं करता. बिल्कुल नहीं बिल्कुल लेकिन हम ये डालेंगे. नहीं, हम दिल से भी ऐसे नहीं हैं. हम प्रिटेंड करते हैं अच्छे होने का, right? लेकिन हम हैं बुरे. हाँ It is required in today's world, actually. Yeah, actually. who knows who is pretending who is real Yeah, right. nobody knows You should have different personalities like to Pakistan survive. Like Pakistan. Pakistan. I am very good with inculcate topics, current topics. अभी जैसे सीजफायर बोल के फिर से बॉम्ब फेंक दिया. हाँ हाँ. वो नहीं होता टॉक्सिक है जो बोलते हैं कि जो आज आपके खत्म. जो दोस्त होते हैं ना, आपके दोस्त, उसको मैं आज से कॉल नहीं करूंगा, बट दे एंड अप सेइंग कल डेट पे गया था उसके साथ, है ना? Exactly. Multiple bipolar disorder. No, no. It's multiple Kind of. personality disorder. मतलब नहीं है लो होता है वो बोलते कुछ है करते कुछ है दैट्स हाउ लाइफ इज बट आप ऐसे ही छोटा छोटा हमारा थेरेपी करते रहिएगा Sure. बहुत अच्छा लगा Sure. और हम बाद में बातें करते हैं मैं आपको कैसे ग्रुप प्रोजेक्ट हैंड ओवर करूँगा आप ट्रीटमेंट करके आप बता दीजिएगा क्या प्रॉब्लम था मेरे अंदर क्योंकि उनकी बातों से पता चल जाएगी फिर मैं अपने आप काम करके उसको और स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा Like 3 Definitely. months में जैसे हम 14 टच कर पाए. Exactly. Right. Okay. Okay. 14 is the number of girls. Yeah. Not the age of a girl. That's very sounds very wrong. Yeah, yeah. No. 14 girls. दलाली 14. वाली फीलिंग नहीं आई डिस्कशन चल रहा 14 लड़कियां हम ला पाएंगे मैं कोशिश करता हूँ 14 लड़कियां ले आते हैं Of course, there is a intelligent hand and a working hand. हाँ You are gonna do work. I am gonna give you the maps. वेरी गुड जैसे कि नीचे लोग भी पागल हो गए हाँ हैं वो तो मतलब कर ही तब रहे हैं। से आवाज़ें They are किए जा रहे हैं. frustrated actually. हाँ, वो रोक के और रोक नहीं पा रहे Somebody is staying outside also. हाँ, बाहर से देख रहे हैं कब खत्म करो तुम लोग